Okay. Once again, welcome to the operating system session. And in this particular session, we're going to start with the new chapter. As we have completed the first chapter, it was the introduction part, the overview part of operating system, in which we learn about the basic evolution, basic introduction. Then we learn about the structures of operating system, then functions and objectives of operating system. And you can learn a lot in this particular topic, that is operating system introduction. So you have all those functions which you have already seen, then components also. What are the different components? Okay. So after completion of that particular topic, now we are moving towards the next topic, the next chapter, that is process and process scheduling. Okay. Actually, I have put this particular slide in each and every chapter file, so that we'll come to know the name of each and every chapter, and we'll revise the name of chapters uh, again and again. Then we will at least we will remember the name of the topics, name of the chapters. Okay. So our second chapter is process and process scheduling. Okay. So this is basically we are going to concentrate on the process and its concept, and then we'll learn many topics. Okay. I will let you know what are the different topics we're going to learn in this particular chapter. Okay. Hope everyone is concentrating. Okay. From now the things are going the things are going very interesting. Okay. Because okay, so थोड़ा सा theory part हमारा कम हो जाएगा, so you will enjoy this particular session also. Okay. Okay. So first of all, we'll just go through the topics or the subtopics which we are going to learn in this particular chapter. That is chapter number 2. That is process and process scheduling. Okay. So first of all, we are going to learn about the concept of a process. What is actually process? Okay, and what is the difference between the program and a process? Okay, so we say program, we say process. Okay, so many times we just confuse that what is exactly program and what is exactly a process. Okay, so we will try to differentiate between these two terms. Okay, we'll try to understand these two terms. Halaki, we have already discussed about these two terms in the earlier session, but now this is the right time to discuss about these two terms. So we'll again discuss. Okay, then we'll learn about the process control block. Okay, I think थोड़ा आगे पीछे है इन लोगों ने जो syllabus design किया है, that is quite थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा आगे पीछे और कुछ नहीं है. Okay, so we learn about the process element. Okay, what are the different element which are present in the process, those things जो मैं बोल रहा हूँ आपको, these are not present right now in this particular slide. Okay, syllabus में भी नहीं दिया है, but ऐसा है कि अगर वो नहीं करेंगे तो टॉपिक नहीं दिया है, बट अगर नहीं करेंगे तो आगे की चीजें समझने में मुश्किल होती है. ओके. सो first of all, we'll go through the process of the concept of a process, and then afterward we'll learn about the elements of process. What are the different elements which are present in the process? Okay. Then we'll learn about the process control block. Okay. So we have a data structure called we have a table called we have a data structure, we have a table, and that particular data structure or table is called as the process control block. I will let you know what are the different elements. Those elements which I'm talking about, that is process element, they are present in the process control block only. Okay, so we'll see the diagram and then understand each and every element of a process. Okay, then after that, that process states. Okay, where process may be in different state. Okay. Okay, so we'll learn about that also. Then process description, so it's all about the process only. Okay, then we have two types of scheduling. Okay, whenever a process wants to execute, okay, so we have to schedule, not we have to we have a component like scheduler. Okay, so these components are, they try to schedule each and every process which comes for the execution. Okay, जो जो प्रोसेस आपके एग्जीक्यूशन के लिए नंबर लगाते हैं, आना चाहते हैं, तो शेड्यूलर क्या करता है, उनको एक एक करके, अभी सबके सब अगर एक साथ में गलती कर देंगे, रश रश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो उनको प्रॉपरली लाइन में, एक होता है ना, हम लोग एक सिक्योरिटी को बाहर रखते हैं कि एक एक करके अंदर भेजना, तो वैसे हमारा शेड्यूलर एक तरह का सिक्योरिटी है, जो कि क्या करेगा, एक एक प्रोसेस को भेजेगा, एंड देन दे विल कम, दे विल एग्जीक्यूट, दे विल कंप्लीट, एंड दे विल, ओके, लाइक दैट. So we have a scheduling. Okay, so one is the uniprocessor scheduling. Basically, scheduling types are a preemptive and non-preemptive scheduling, and we have number of algorithms which we had a discussion in the syllabus.
session itself. So one is the preemptive and the second one is non-preemptive. The preemptive scheduling algorithm is the one in which you can preempt the process, okay, from the running state also. ठीक है, एक बेचारा प्रोसेस है, रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन पीछे से कुछ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, रिक्वायरमेंट आ गया, then what your scheduler have to your scheduler has to preempt that particular process, okay, from the running state. और जो हायर प्रायोरिटी वाला है, होता है ना भाई, लाइन जैसे आप लोग अभी जा रहे हैं, ओके, रोड पे जा रहे हैं, पीछे से एम्बुलेंस आती है तो क्या करते हैं आप लोग? नहीं, रास्ता रोक के खड़े रहेंगे, वी आर फर्स्ट, ओके, एंड विल गो फर्स्ट, ऐसा कुछ है। इवन सिग्नल्स कैन नॉट स्टॉप दी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से, फायर ब्रिगेड से, तो ये मतलब ना सिग्नल पे रुकते हैं ना कहीं रुकते हैं। सो दीज आर दी हायर प्रायोरिटी टास्क और द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, सो यू जस्ट असाइड एंड यू जस्ट लेट देम पास, ओके। सो ऐसे ही कुछ यहाँ पर होता है कि अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है, सो दे कम एंड यू the process which is running right now, तो उसको हम लोग को प्रीम्प्ट करना पड़ता है, इसको अलग करना पड़ता है। सो कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो प्रीम्प्टिव होते हैं, जिसके अंदर हम प्रोसेस को हायर प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं। बट कुछ एल्गोरिथम ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम लोग प्रीम्प्ट नहीं करते हैं, तो बोलते हैं नॉन प्रीम्प्टिव, ठीक है। So we'll learn about that also, and we are going to learn about the SPFS, that is first come first serve, shortest job first, and then SRTM, that is the shortest remaining time, um, and then उसके बाद में priority है, then उसके बाद में round robin, ठीक है। So we have total 5 algorithms we will learn about. Okay, we'll take a lot of examples from the university also, and then we will try to solve those questions. Okay, I told you that there is a question in exam for this particular scheduling algorithm. These are called as scheduling algorithms. Okay, या scheduling, बहुत से लोग की इंग्लिश अच्छी होती है तो हम लोग स्केड्यूल बोलते हैं ना, तो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है ना, अपन इंडियन है तो अपन नॉर्मल इंग्लिश से चलते हैं। Okay, so we learn about these particular things like scheduling algorithms, the focus, and the last one is thread. Okay, so we learn about what is thread, what are the different types of thread. Okay, user thread होते हैं, kernel thread होते हैं, then concept of multi-threading. Multi-threading के अंदर आपके one to one के अंदर मैपिंग आपने भी शायद पहले पढ़ा होगा, one to one, one to many, many to many, so these are the different mappings. So we'll learn about this. ठीक है, so these are the content which we are going to learn in the second chapter, that is process and process scheduling. Okay, so चलिए शुरू करते हैं। हमारा first topic है, that is process का concept. Okay, so first of all you need to understand, even most of you have already understood what is actually process, but as a as a routine work, we have to revise this particular topic again so that others can understand. Okay, हो सकता है आप में से काफी लोग तो समझ गए हो, बट स्टिल काफी लोग को नहीं भी समझा हो, तो हम लोग एक बार इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा मैं एकदम शॉर्ट में जाता हूँ और थोड़ा सा फ्लैशबैक से और आपको कुछ एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट behind the process. Okay, you have a computer, okay, and in that computer you have a lot of application, like you have PLC player, you have MS Paint, you have MS Word, you have MS Excel, okay, you have My Computer, okay, because I'm just right now I'm just talking about the Windows operating system. Okay, so हमारे Windows operating system में you will find all these application running in your system. Okay, so you click on the VLC player, you click on the My Computer, you click on MS Word, you click on MS Paint. Okay, so these 4 applications you have opened, okay, in your laptop or in your desktop. Okay, so when you double click on any of the application, whatever you are opening right now, so whenever you click on any of the application, okay, it will open. It will take some time, around 2 or 3 seconds. It will take. Okay, so if the computer is the latest one, then it will open, it just एक सेकंड के अंदर 2 सेकंड में ओपन हो जाता है। if the थोड़ा सा पुराना कंप्यूटर है, लैपटॉप पुराना है और रैम कम है, then it requires time, बस थोड़ा सा लोड होने में और सेकेंडरी स्टोरेज से लाने में, मेमोरी में डालने में। आई विल लेट यू नो ऑल दिस थिंग व्हाट एवर आई एम टेलिंग, ठीक है। तो सब चीजें प्रोसेस करने में उसको टाइम लगता है, तो कभी 3 से 4 सेकंड, कभी 5 सेकंड भी ले लेता है, ठीक है। So when you open any of the application, okay, when you open any of the application, then what happens actually हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन करता है
साथ साथ में एक छोटा सा प्रोसेस भी बनाता है उसके नाम का, ठीक है, उसके नाम का एक प्रोसेस बनाता है, और वो प्रोसेस आपका बैकग्राउंड में यू कैन सी दैट पर्टिकुलर प्रोसेस रनिंग इन द टास्क मैनेजर। ओके, सो टास्क मैनेजर में वो आपका रन होता है, ठीक है। अगर आपने उसको गलती से उसको अगर आपने किल कर दिए, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को किल कर दिए, फॉर एग्जांपल आपने माई कंप्यूटर डबल क्लिक किया, ठीक है, सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट माई कंप्यूटर option or icon, so your my computer will open, okay, and one process will be created inside the task manager, okay। तो उसमें उसमें आपको सारे टास्क दिखेंगे, वहां पर आप लोग वो सारे टास्क, मतलब वो सारे प्रोसेस भी होते हैं जो कि सिस्टम के प्रोसेस होते हैं, बट यू कैन नॉट सी, ओके। व्हेन जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ प्रोसेस दिखेगा नहीं, बट अगर आप उसको अनहाइड करेंगे तो यू विल बी एबल टू सी द number of processes, that is system processes, which are running by default by the operating system, okay। तो कहना मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ, बेसिकली द प्रोसेस इज द वन विच इज क्रिएटेड whenever you open any application program, okay, whenever you open any application program, one process of that particular application program is being created by operating system, and when you kill that particular process from the task manager or from the manager, whatever is there in your operating system, if you are using Linux operating system, the name is not the name is not task manager, okay, but if you are using Windows, then in Windows we have a task manager, यहाँ पर कुछ और होता है, ठीक है, you can see all the processes, okay। So process is the, we can say in short, we have a definition: process is nothing but a program in execution। एक छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एक जो प्रोसेस है आपका, एक वो चीज है जो कि प्रोग्राम, अगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो वो आपका प्रोसेस भी कहलाएगा, ठीक है। सो प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। Excel definition. Whenever you will be asked for this particular question, like what is process? Process is a program in execution. Okay. Then later we can explain. Okay, so whenever we open any application program, one process of that particular application program is being created by an operating system in our computer. Okay. तो एक वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग अपने, फॉर एग्जांपल, अपने माई कंप्यूटर को अपने क्लोज किया, तो व्हेन वी क्लोज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम, Acha, all these are the application program. Okay, I'm just taking the name of these application program. So all these are application program. Like you have My Computer, you have MS Word, you have MS Excel, you have MS PowerPoint, you have MS Paint. Okay, you have Microsoft VS Code. Okay, and then you have Android Studio. So all these are the application program basically. Okay, so these application program. Whenever we are starting these application program, one process of that application program is being created by an operating system in our computer, okay? तो जब भी कोई एप्लीकेशन आप लोग ओपन करेंगे, तो उसका एक प्रोसेस अंदर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा, अंदर अंदर के चलना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेन यू क्लोज एंड व्हेन यू एग्जिट दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, आपने जहां पर आपने वो एमएस वर्ड को ओपन किया था, तो उसका एक प्रोसेस यहाँ पर बन गया था, ठीक है। अब जब इसको क्लोज करेंगे, जब उसको बंद कर देंगे, तो यहाँ का प्रोसेस भी गायब हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। सो वी कैन से दैट अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ओके। देन एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। सो उसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे टर्म्स में ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, बराबर, इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम रनिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम का इंस्टेंस है, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल माय कंप्यूटर, तो माय कंप्यूटर का क्या है? ये एक इंस्टेंस है। व्हाट इज योर प्रोसेस? A process is an instance of program running on your computer. Okay, so I give you one example. You have my computer. You double click on my computer. So my computer is open now. ठीक है, बट उस my computer का एक छोटा सा इंस्टेंस आपके टास्क मैनेजर में चल रहा है, वो आपका प्रोसेस है। Okay, so we can give this definition also. Then we can also call it that a process is an entity that can be assigned and executed on a processor, ठीक है। तो बेसिकली हमारा माई कंप्यूटर, हमने जब डबल क्लिक किया, ओपन किया, तो माई कंप्यूटर ने क्या किया? माई कंप्यूटर ने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है मेमोरी मैनेजमेंट। तो भाई साहब, हमारे माई कंप्यूटर ने मांगा उसको कि मेमोरी
मेमोरी मैनेजमेंट भैया हमको ना तो एग्जीक्यूट होना है, तो हमको कुछ थोड़ी सी मेमोरी चाहिए, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट बोलेगा ओके ठीक है मैं देता हूँ। तो फिर भाई साहब ने ना जो जो उनके पास मेमोरी अवेलेबल थी उसमें जहाँ पर जितनी मतलब कि ऑक्यूपाइड थी उसके आगे से जितनी उसको चाहिए था माई कंप्यूटर को रन होने के लिए उतनी उसने इसमें उसको एलोकेट कर, ठीक है। सो मेमोरी मैनेजमेंट ने उसको मेमोरी दिया, तो माई कंप्यूटर एग्जीक्यूशन में आ गया, ठीक है। तो और उसको एग्जीक्यूट किया किसने, हमारे प्रोसेसर भैया ने की, ठीक है। तो हमारा प्रोसेसर वो सारे के सारे एप्लीकेशन को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो आपका प्रोसेसर रन करता है, मेमोरी जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो आपको मेमोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। So we can also say that it is an entity that can be assigned and executed on a process. Obviously, इसके अलावा और कोई execute करने वाला नहीं. No one is there to execute any application program. Is there anything? Is there any component who can execute my application? कोई है दूसरा जो मेरी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है? नो वन इज देयर, ओके। आई हैव वन एंड ओनली प्रोसेसर दैट इज माय सीपीयू हु कैन एग्जीक्यूट माय एप्लीकेशन, ओके। अच्छा आप अपने कंप्यूटर में से सीपीयू को निकाल लो, प्रोसेसर को निकाल लो, क्या होगा बोलो, क्या आप अपने प्रोग्राम्स रन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इवन यू कैन नॉट स्टार्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं दिखेगा। So processor is the one, your CPU is the one, उसके अंदर आपका processor is the one who is executing all the application program, and the one and only operating system is also being executed by the processor, okay. So we can say entity, it is an entity that can be assigned and executed, उसको हम लोग किसी को असाइन कर सकते हैं, यानी बेसिकली प्रोसेसर को असाइन करेंगे कि भाई प्रोसेसर भाई ये हमारे प्रोसेस को जरा एग्जीक्यूट कर, और उसको फिर एग्जीक्यूट करने के बाद में कंप्लीशन हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द थ्री फॉर्मल डेफिनेशन आई हैव रिसीव्ड एंड आई हैव गॉट फ्रॉम बुक, सो मैंने इनको निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। सो यू विल रिमेंबर दीज थ्री डेफिनेशंस एंड दीज थ्री डिफरेंट डेफिनेशंस है जो कि हम लोग प्रोसेस के बारे में बोल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आपको प्रोसेस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझा होगा, कोई नहीं समझा हो किसी को तो बताओ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझा हो तो फिर रिपीट करेंगे। It is very simple concept, program in execution. Okay, whenever you think and whenever you imagine that we have application program को आपने रन किया, एग्जीक्यूट किया, बैकग्राउंड में एक छोटा सा प्रोसेस उसका उसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और वो जब इंस्टेंस क्रिएट होता है तो फिर आपका एप्लीकेशन रन होने लगता है। अगर वो प्रोसेस अगर सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हो पाया, अगर वो प्रोसेस सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हो पाया तो आपका एप्लीकेशन भी रन होने में नाटक करेगा, ठीक है। वो आपका एप्लीकेशन इसीलिए सक्सेसफुली आपको ओपन होता हुआ दिखता है क्योंकि अंदर अंदर जो बैकग्राउंड में उसका उसका प्रोसेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ओके। सो दीज आर द थ्री बेसिक डेफिनेशन। उसके 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 बारे में हम जितना डिस्कस करना चाहे बहुत डिस्कस कर सकते हैं प्रोसेस के बारे में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Now we'll try to understand the difference between the program and a process. Okay, so अभी तो खैर हम लोग को समझ में आ गया कि what is program. Program is just nothing but a piece of code. Okay, ये आपका application program which is installed in your hard drive. ठीक है, आपके हार्ड डिस्क में वो इंस्टॉल्ड है। आपने MS Office जिसके अंदर MS Word है, MS Office है, sorry, you have already installed MS Office, that is in which MS Word, Paint, and Excel and PowerPoint are already there. Okay, so you have installed that is particular. This particular software is nothing but a application program or a program. Okay, so we can say that this is an application or program or application program, whatever you call. Okay, but this is not a process. Okay, ये as it is run नहीं हो सकता. Okay, until and unless you will assign and you will order it to open or execute, it will not execute, okay। बट हमारा जो प्रोसेस है तो प्रोसेस हमारा क्या होता है, ये हमेशा हमेशा एग्जीक्यूशन मोड में होता है, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूशन मोड में या रेडी मोड में वी हैव नंबर ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, बिकॉज वो ना ऐसा होता है ना, किसी भी इंसान की या किसी भी एक बोलो एनिमल की या किसी भी चीज की एक लाइफ होती है, ठीक है। For example, if you consider this mouse, okay, so it was the date on which I bought this particular mouse from Flipkart, ठीक है। So जो उसकी लाइफ स्टार्ट हुई या फिर जब इसको
मैन्युफैक्चर किया गया, तो उस वक्त में इसका इसका मतलब क्या हो गया, इसका बर्थ हुआ, ठीक है। तो ये जब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद मैं इसको यूज कर रहा हूँ, अराउंड 3 to 4 years हैव बीन ऑलरेडी पास, ओके। नाउ अभी ये 1 और 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल जितना भी चले, तो उसकी लाइफ बन जाएगी, ठीक है। तो और वो मतलब फॉर एग्जाम्पल मतलब के कहने का पर्पज ये, फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, फॉर एनी एनिमल और फॉर अ ह्यूमन बीइंग, देयर इज अ लाइफ साइकिल, ओके। हर किसी का लाइफ साइकिल होता है, बट बेसिकली ऑब्जेक्ट का उतना ही उतना उतना कंसिडर नहीं करते हैं, बट फॉर एनिमल, फॉर ह्यूमन बीइंग, ओके, सो वी कैन कंसिडर अ लाइफ साइकिल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा है, ठीक है, अभी मतलब जस्ट उसका बर्थ हुआ है, ठीक है, तो छोटा बच्चा है, उसके बाद में फिर थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल गया, फिर उसके बाद में टीनेज, फिर उसके बाद में कॉलेज गया, कॉलेज के बाद में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड दैट कंप्लीशन, एजुकेशन कंप्लीट्स एंड देन आफ्टरवर्ड फिर देन बाद में ही गॉट मैरिड, उसके बाद में फिर उसकी लाइफ आगे, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में एक टाइम आया कि उसका डेड हो जाएगा, मतलब बेसिकली उसका मतलब कि डेथ हो जाएगी, जहाँ पे उसकी होगी डेथ तो खत्म हो गया, ठीक है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल आई जस्ट वांट टू से। So I mean to say that for each and every process also, for each and every process we have different life cycle, okay। तो वो लाइफ साइकिल भी स्टार्ट फ्रॉम द न्यू, ओके, वी हैव डिफरेंट स्टेट। सबसे पहले स्टेट आता है न्यू, वेयर द प्रोसेस इज क्रिएटेड। उसके बाद में रेडी स्टेट, आई विल लेट यू नो ऑल द स्टेट्स। so we have second state as a ready state, we have third state as a sleep, sorry, we have third state as a running state where the application or the process is running actually, okay। then we have fourth state as a sleep or waiting state, okay। and then we have fifth state as the dead state or terminate state, okay। so these are the different state in which your process can be, okay। यहाँ पर हम लोग आ रहे थे, कहीं की कहीं चले गए। so basically program is not a process, okay, because we say process is a program in execution, okay। जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेंगे उसको, तभी वो प्रोसेस कहलाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ओके। तो प्रोग्राम प्रोसेस को हम लोग नहीं बोल सकते, जस्ट पीस ऑफ कोड है उसको हम लोग प्रोग्राम बोल सकते हैं। या आपके डेस्कटॉप पे, ऑन योर डेस्कटॉप you have VLC player already installed, okay। so that VLC player can be called as a program, okay, but right now you are not executing it, you are not executing that particular application or that particular program, so you can call it as a program, okay, but you cannot call it as a process। जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक आप उसको प्रोसेस नहीं बोल सकते, ठीक है? किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को आप प्रोसेस जब तक नहीं बोल सकते जब तक कि वो एग्जीक्यूशन में ना आ जाए, okay। so your program is not a process, but a process program in execution, okay। so a process is nothing but a program in execution, okay। so try to understand the difference, okay। for program is a it is the static entity। आप देखोगे देखो आपके फिर मैं थोड़ा सा और डीप आपको लेके जाता हूँ। basically you have two types of memory, okay। one is the random access memory, that is RAM, and आपका फिर secondary storage भी होता है, okay। so whatever application which you have already installed, like MS Office you have installed, VLC player you have installed, okay। so all these application, all these programs, all these application programs are installed in your secondary storage, right, okay। and whenever you double click on that particular application, it comes to the रैम, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं ना कि भाई जितना जितना अच्छा रैम उतने ज्यादा एप्लीकेशन आप रन कर सकते हैं, ऐसे होता है ना। ऐसे ही होता है बेसिकली whenever you open or whenever you execute any application or program, so your operating system load that particular application into the main memory and then execute, ठीक है। बिकॉज मेन मेमोरी में लाएगा, मेमोरी एलोकेशन देगा और एलोकेशन करने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो लेकिन आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका एप्लीकेशन है, जो कि ऑलरेडी बस सेकेंडरी स्टोरेज में ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, सो इट इज स्टैटिक एंटिटी। अभी फिलहाल वो एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके लिए तो प्रोग्राम है। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता तो क्या कहलाता, वो आपका प्रोसेस कहलाता, ठीक है। सो पीपल्स आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। थोड़ा सा हम लोग इसको चीज को बार बार रिपीट करेंगे in order to understand it clearly, okay। so if you come to if you got any issue, then please let me know, then we will try to solve that issue also.
Okay, so this particular stage, I'm assuming that is the understanding. Okay, can I assume that? Okay, okay, भाई दो लोग हाँ बोल रहे हैं कि हाँ assume कर सकते हैं. So basically, a program is a static entity because right now it is not executing. Okay, and in the same way, मैं पूरा ले लेता हूँ because the animation हमने बहुत डिस्टर्ब कर दिया है. मैं सब लिख लेता हूँ, उसके बाद हम ये चीज को पढ़ते हैं. चलो. So program is a static entity, but your process is a dynamic entity because right now it is executing. Okay, your program is executing right now. That's why it is a dynamic entity. It can store the status, whatever status in which right now your process is. आपका जो process है वो किस state में है, वो अपनी state की information कहीं save कर सकता है, कहीं से gain कर सकता है. Okay, and वो stop भी हो सकता है, फिर वापस से resume भी हो सकता है. So it's a dynamic entity. Your process is always a dynamic entity. But your program is not a dynamic entity. It's a static entity because right now, Khali, it is just a piece of code. Your program right now, your program is it is just a piece of code. But your process is not a piece of code. Your process is a program which is an execution right now. And if it is an execution, then it is doing all the tasks which is required. Okay. And if it is doing all those tasks which is required, then it is not a static entity. It is a dynamic entity. Okay, so in this way we can understand the difference between the static entity and the dynamic entity. From the next point, that is, it is a passive entity made up of a statement executed by the processor. So basically I told you earlier that we have हाँ lag हो रहा है भाई साहब. I'll make use of another pod also so that आवाज अच्छे से. ऐसे एकदम क्रूशियल पॉइंट्स आते हैं ना, तभी थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस आ जाता है. क्या करें? Am I audible? Am I audible? Can you listen me? आवाज आ रही मेरी? Okay. Now it is okay. Okay. So we were talking about the third statement. We were talking about the third statement, that is it is a passive entity made up of the statement, and I told you that our program is just a piece of code. देखो, when I say program, जैसे ही word आया program, समझ जाओ कि अभी execution में नहीं है. और जैसे ही word आया process, तो समझ लो कि वो execution है. Okay, so whenever you listen that there is a program, then just imagine कर लो कि program अभी execution में नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में नहीं रहता है. जब उसको हम बोलेंगे प्रोसेस, तो फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ गया, इसीलिए उसका नाम है प्रोसेस. ठीक है. सो it is a passive entity because right now your program is having just a piece of code, just a line of statement, line of code hai. So it is made up of line of code right now, and those instruction, those line of code will be executed by the processor. But when but when all these but when all these lines of code will be executed when you will execute your application. Okay, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं ना कहीं चीज से आपको समझ जाए. ठीक है. And the same way your process is active entity. Okay, why your process is active entity? Because right now it has all the data structure of a particular process. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने माई कंप्यूटर ओपन किया, तो माई कंप्यूटर का एक डेटा स्ट्रक्चर बन गया, एक टेबल बन गया. उस टेबल में प्रोसेस की आईडी है, उस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है, उस प्रोसेस की प्रायोरिटी है, उस प्रोसेस की नेक्स्ट उसके अंदर जो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उनका एड्रेस है. ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ओके, सो वो क्या है, एक एक्टिव एंटिटी है. बट your program is not the active entity, it's a passive entity, but your process is the active entity. Okay, come to the next one. Program takes space at a single space in memory and stays there only. I told you, whenever you talk about program, just imagine कर लो कि आपका program अभी फिलहाल secondary storage में है. Whenever I talk about the program, then just imagine that your program right now, your program is residing in the secondary storage.
not in the main memory. When your program will be in the main memory, तो क्या बन जाएगा वो आपका प्रोसेस. बिकॉज क्या होता है बेसिकली, whenever you open any application, तो फॉर एग्जांपल आपने VLC प्लेयर ओपन किया, तो VLC प्लेयर ओपन हुआ. आई जस्ट गिव वन एग्जांपल, मैंने आपको सेम एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले भी दिया. तो आपने जैसे ही VLC प्लेयर ओपन किया, तो VLC प्लेयर क्या करेगा, अपने मेमोरी मैनेजमेंट भैया से क्या मांगेगा, मेमोरी मांग, भाई मुझे मेमोरी दो ताकि मैं एग्जीक्यूट होना है मुझे. ठीक है, तो फिर मेमोरी मैनेजमेंट भैया उनको थोड़ा सा मेमोरी देगी. ठीक है, और वो मेमोरी देने के बाद में अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस VLC प्लेयर को, जो कि राइट नाउ इट इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी स्टोरेज, तो सेकेंडरी स्टोरेज से उठा के लाके उसको मेन मेमोरी में रखेगा. अब वो जाके एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा. यस यस, मेन मेमोरी इज रैम. ओके, सो मेन मेमोरी मतलब बोलने में मेन मेमोरी आती है, इसके लिए बार बार मेन मेमोरी. ओके, सो रैम. देखो ना, आप लोगों ने काफी दफा सुना होगा, यार मेरे कंप्यूटर में गेम नहीं चल रहा है प्रॉपर्ली, या बहुत लैग कर रहा है, बहुत स्लो चल रहा है. ओके, या फिर जो होते हैं यूजुअली, हमारे पास में रैम, मेरे पास में रैम ओनली 2 GB रैम है राइट नाउ. मेरा जो ऑफिस का वर्क है, तो मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन करना होता है, तो मेरा कंप्यूटर मेरा बहुत लैग करता है, बहुत हैंग होता है. सो बहुत से लोग क्या सलाह देते हैं कि जस्ट इंक्रीज द रैम. ओके, सो दैट in result, what will be the result of that particular increasing RAM? You will be able to execute multiple application. आपने 2 GB रैम और बढ़ा दिया, 2 और 2 4 हो गया. ठीक है, now your main memory का जो साइज हो गया वो 4 GB हो गया. So it means that maximum, more number of application can be loaded inside the main memory. More number of application can be loaded inside the main memory and can be executed. Okay, तो ज्यादा feasible हो जाएगी. Okay, तो इसके लिए RAM increase करने बोलते हैं. That's the main reason. हाँ, और प्रोसेस को हम लोग बात करते हैं. When program is loaded into the memory, it becomes a process. Okay, जब आपका प्रोसेस, सॉरी, जब आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हो गया, तो लोड होने के बाद में वो क्या बन गया, प्रोसेस बन गया. ठीक है, सो द सेम थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट. on the left hand side we were talking about the program. Program does not perform any action by itself. छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा हुआ है, कुछ हिलना जुलना नहीं, कुछ हरकत नहीं, कुछ नहीं, बैठा है चुपचाप. क्यों? क्योंकि आपने उसको ओपन ही नहीं किया है अभी तक. और जैसे ही आपने इसको ओपन किया, जैसे ही आपने इसको ओपन किया, तो क्या बन जाएगा, वो प्रोसेस बन जाएगा. और जैसे ही प्रोसेस बनेगा, उसका डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा. और जब डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इट विल इन्वॉल्व इन ऑल द एक्शन वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कैसा बन जाएगा, फिर वो पैसिव एंटिटी बन जाएगी आपकी. ठीक है, सो इट विल परफॉर्म ऑल द रिक्वायर्ड टास्क, जो भी वो कर सकता है वो करेंगे. ठीक है, सो this is, we can differentiate between the program and the process. ठीक है, so remember, just a piece of code which is residing in your secondary storage is the program. Okay, when that piece of code is loaded inside the memory, when that piece of code is loaded inside the memory, then what will happen? When that piece of code is loaded inside the memory, it becomes a process. Okay, and when it becomes a process, it is active entity, it is an active entity. Okay, it's a dynamic entity. Okay, it can do all the tasks which is required, it can access the resources also, external resources, IO resources, processor को ले सकता है, सारे काम कर सकता है अगर वो मेमोरी में लोड हुआ. ठीक है, so program just a piece of code, process, program and execution. Okay, when program is loaded inside the main memory, so it becomes a process. Okay, so it was just a difference between the program and a process. Okay, we have two types of process. just मेरे को कहीं दिख गया तो मैंने डाल दिया, कहीं पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी just remember, बुक के अंदर है लिखा हुआ. So we have two types of process. One is the user process. These user process are being created by the user only. Okay, and execute user program. And we have system process. System programs are not executed by the user. Okay, they are started by the operating system and handled by the operating system. Okay, देखो सिस्टम स्टार्ट किया आपने. ओके, सिस्टम आपने स्टार्ट किया, सो बाय डिफॉल्ट कुछ प्रोसेसेस बाय डिफॉल्ट पहले से चलने लगते हैं. ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट पहले से कुछ प्रोग्राम, कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है ऑलरेडी, कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, मतलब कुछ प्रोसेस चल रहे हैं.
लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है, ठीक है, बिकॉज दीज आर दी सिस्टम प्रोसेसेस, ओके, दीज आर दी ऐसे प्रोसेसेस है विच आर रिक्वायर्ड टू विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम, ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल है नेटवर्किंग। तो अब नेटवर्किंग की सर्विस आपकी चल रही है, ठीक है, हमको कभी ऐसा नहीं करना पड़ा कि सिस्टम स्टार्ट करने के बाद में नेटवर्किंग को आपको ऑन करना पड़ा, then only you will be able to connect with the Wi-Fi, the nearest Wi-Fi or the Wi-Fi which is in your home, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि हमको नेटवर्क की सर्विस ऑन करना है, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा, ठीक है, because these are the services which are by default on, okay, which are by default on for each and every operating system, almost for all the operating system, okay। सो ये ऐसे जो प्रोसेस होते हैं इनको हम सिस्टम प्रोसेस बोलते हैं, ओके। और ऐसे प्रोसेस जिसको हम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वीएलसी प्लेयर पे डबल क्लिक किया, you click on that particular VLC player, so that particular VLC player when it will open, so it becomes a process, okay, and this process is created by whom? This process is created by you only, okay, because you were the person who clicked on that particular my computer, you click on that particular VLC player, okay, तो वो आप थे जिसने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। So it was you who created that particular process. So the process which has been created by the user is called as user process, okay, and all obviously executed user program जो आपके programs उनको execute करते हैं, तो these are the user process and the system process. User process जिनको आप बनाते हैं, system process जिनको system बनाता भी है और handle भी करता है, आपको उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, okay। So it was a slide, मैंने इसलिए इसको simply add कर दिया, ठीक है। प्रोसेस एलिमेंट देख लेते हैं, फटाफट हो जाएगा, एंड देन विल ट्राई टू इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ओके। अब अच्छा भाई देखो, प्रोसेस के बारे में तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया, ठीक है। तो प्रोसेस इज ब्ला ब्ला ब्ला, प्रोसेस इज द स्टैटिक एलिमेंट, प्रोसेस इज द वन, प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन जिसका स्टार्ट हो चुका है उसको हम लोग प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली if we can say all this thing, then there must be some sort of element, there must be some sort of element for a process, okay। कुछ तो एलिमेंट्स होंगे उसके, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, आपका नाम है, आपका रोल नंबर है, आपका परसेंटेज है, आपका एचएससी का, आपका एसएससी का परसेंटेज है, ओके। सो यू हैव ऑल दिस एलिमेंट्स विद यू, ओके। इफ आई से दिस पर्टिकुलर माउस, ठीक है, इस माउस की हाइट हो गई, माउस का वेट हो गया, माउस की प्राइस हो गई, ओके। सो आई कैन से दीज आर द एलिमेंट बेसिकली। तो हम लोग जस्ट समझने के लिए बोल सकते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स, ओके। Okay, so when I say that these are the element, these are the specification of this particular mouse. So in the same way, for each and every process, we have some elements also. Okay, let us see what are the different elements which are there for each and every process. The very first process is the identifier. हर किसी process का एक नाम होता है, एक ID होती है, ठीक है। तो नाम तो नहीं होता है, आईडी होती है। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग में हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, वैसे ही हर किसी प्रोसेस का एक आईडी होती है। फॉर ऑल द प्रोसेसेस व्हिच आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड बाय द यूजर, बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, सो दोस processes are having unique identifier, okay, so unique id from which it can be distinguished from others also। मालूम पड़ा दो प्रोसेस के नाम से, तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि ये वाला प्रोसेस माय कंप्यूटर का है और दूसरा वाला प्रोसेस वीएलसी प्लेयर का, हाउ यू विल आइडेंटिफाई, how your operating system is going to identify that कि these two processes are different, okay। So in order to identify, we can give it a name. This is the first element, that is identify. The second one is state, okay, I told you that your process may reside in any of the state, okay, new, ready, running, wait, and dead. So these are the 5 states in which your process can be, okay। Your process may reside in any one of the state, okay। या तो आपका प्रोसेस अभी क्रिएट हुआ है, या तो आपका प्रोसेस अभी रेडी स्टेट में बैठा है, या तो आपका प्रोसेस अभी रन हो रहा है, या तो आपका प्रोसेस अभी वेट कर रहा है किसी का, या स्लीप में है,
या तो आपका प्रोसेस डेड हो चुका है, ठीक है। So in any of the state where process will reside, okay, so that is the second column, the second element, your process state. The third one, that is priority. I told you about the priority, that higher priority process can come later and then can execute earlier also. ठीक है, अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है तो उसकी जो प्रायोरिटी के हिसाब से उसको पहले चांस देना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, और जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उनको बाद में चांस देना, ठीक है। तो सो देयर इज अ प्रायोरिटी कॉलम always there in the process element, okay. प्रोग्राम काउंटर, आई टोल्ड यू दैट फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, आपका प्रोसेस क्या है, इट्स अ प्रोग्राम, ठीक है। बट अभी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके लिए उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोसेस, ठीक है। तो जो आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम में बेसिकली क्या है, लाइन ऑफ कोड्स है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, you have number of lines, okay, which are there in the program, okay. So your program counter is the field which जिसके अंदर क्या होता है, एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम। आपके पास में 11 लाइंस है, 11 या 12 लाइंस है, ओके। आपने आपके आपके प्रोसेस में राइट नाउ भी 6 लाइन एग्जीक्यूट कर ली है। टाइम को थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, मतलब जस्ट इमेजिन कर लो, हालांकि जो हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, डबल क्लिक किया, वीएलसी प्लेयर फटाक से ओपन हो गया, वीएलसी प्लेयर फटाक से ओपन हो गया, कितना लगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ओपन हो गया। तो वीएलसी प्लेयर का जो अगर आप कोड देखेंगे तो इन दैट वीएलसी प्लेयर का कोड यू विल फाइंड अराउंड 100 और 200 लाइन ऑफ कोड रहेगा उस वीएलसी प्लेयर को एग्जीक्यूट। बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है, लाइन ऑफ कोड है। सो दैट लाइन ऑफ कोड एक एक करके एग्जीक्यूट हुई होगी, और एग्जीक्यूट होके अंदर क्या हुआ होगा, आपका आपका एप्लीकेशन रन हुआ होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है, इट स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम कोड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी 100 लाइन है आपके वीएलसी प्लेयर के, जो जो कोड है, जो सॉफ्ट कोड है उसका, उसके अंदर 100 लाइंस है, ओके। तो जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, जैसे ही डबल क्लिक किया, तो आपका प्रोग्राम वीएलसी प्लेयर ओपन होगा, ठीक है। जस्ट थोड़ा सोचो, एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोचो। पीपल हु हैव सीन द वांटेड मूवी, ओके, द इंग्लिश वन, उसमें देखो अपने मतलब है ना, हार्ट बीट पर जो कंट्रोल करने वाला कुछ कॉन्सेप्ट है उनका। सो इन दैट पर्टिकुलर मूवी वो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करके यू कैन डिवाइड द टाइम इनटू नंबर ऑफ मिली सेकंड में उसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। एंड यू कैन इवन लिसन द हार्ट बीट ऑल्सो। एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को आप लोग लर्न करके उसको देख के उसको उसके अंदर आप अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा इमेजिन कर लो अभी, वो मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो इमेजिन करो, डबल क्लिक किया आपने, यहाँ आपका वीडियो स्टक नहीं हुआ, मैं थोड़ा रुक गया। सो आपने जैसे ही वीएलसी प्लेयर पर क्लिक किया, तो वीएलसी प्लेयर पे क्लिक करने के बाद में वीएलसी प्लेयर जैसे ओपन हुआ, उसका अंदर का कोड, ठीक है, उसके अंदर के कोड में फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, सेकेंड लाइन, तो जैसे ही फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टेटस अपडेट हो गया। हो सकता है कि 2 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद में लाइट चली गई अचानक, ठीक है, या फिर आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली क्लोज हो गया, तो उसको स्टेटस तो स्टे सेव करना है ना, कि भाई ओपन किए थे लेकिन ओनली 2 लाइंस वर एग्जीक्यूटेड एंड द रिमेनिंग लाइन वर नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो स्टेटस सेव करता है बेसिकली। सो प्रोग्राम काउंटर इट सेव्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। एकदम फ्रैक्शन होता है, बिकॉज आपने डबल क्लिक किया, वीएलसी प्लेयर ओपन, ठीक है। हालांकि अंदर क्या हुआ, जो 100 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड थी, जो 100 लाइंस ऑफ कोड थी, वो एक एक करके एग्जीक्यूट हुई, तभी जाकर आपका वीएलसी प्लेयर ओपन, okay. So you have a program counter which saves the address of next instruction। फर्स्ट लाइन हुआ, स्टेटस सेव, सेकेंड लाइन, अब प्रोग्राम काउंटर में क्या आता है कि भाई थर्ड लाइन ये इसको इसको एग्जीक्यूट करना, फिर थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हुई तो फोर्थ लाइन का प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा एड्रेस, ओके, कि भैया फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट करना, इन सो एंड सो ऑन, ओके। सो दिस इज द प्रोग्राम काउंटर। कितना टाइम हुआ है भाई, 2:49 टाइम हो गया है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है, बिकॉज हम लोग को इसी इसी टॉपिक को आगे भी ले जाना है। वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। आई विल शो यू, दिस इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड all the element which we have seen over here, यहाँ जो हम लोग ने देखा है, so all these elements are there in this process control block only, okay। So we have a process control block,
तो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे और समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 5 marks examination question. So here we stop, and the remaining part will be covered on Monday. Okay. Let's stop the recording first. Javed Khan shakes Google Drive.